دہرانا اور اس کی ہیکل کے اندر پاک الفاظ کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا مبارک ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ ایک بڑی محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں جب خدا کا کلام پڑھتی ہیں تو خداوند کا جلال کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دونوں خدا کے کلام سے بلیس ہیں۔ ایجوکیشن ان کے پیرنٹس نے ان کی کروائی ہوئی ہے، یہ پڑھی لکھی ہے دونوں۔ ایک حوالہ یہ بیٹی پڑھے گی اور دوسرا حوالہ وہ بیٹی پڑھے گی۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہاللیلویا۔ پہلا حوالہ یہ بیٹی۔ اسی ترتیب سے ہم لوگ بائبل کو آج اپنی زندگی پہ لیں گے اور خاص طرح کی بلیسنگ کو، سیکھنے کی بلیسنگ کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لیں گے۔ دو طرح کی پوزیشن بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے اسکول جاتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ دو شخصیت، the one teacher and the second student۔ تو سیکنڈ کو آج ہم لیتے ہیں اسٹوڈنٹ، سیکھنے والے، ایک ممار جو اس کو تراشتا ہے اور کل کو وہ دنیا کے اندر ایسے ایسے کام کرتا ہے، ایسی ایسی منزلوں کو عبور کر جاتا ہے، ایسے ایسے رستوں کو پار کر جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے ٹیچر کی دعائیں اور اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک اچھی تربیت کے لیے اچھا شاگرد ہونا ضرور ہے۔ اور بائبل مقدس شاگرد کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئے آج ہم شاگرد کے ٹاپک کے اوپر اپنی زندگیوں کے اوپر کلام کریں گے۔ پہلا والا بیٹی پڑھے گی اور دوسرا والا جب آئے گا پھر وہ بیٹی پڑھے گی۔ تو پہلا والا دا بک آف ایکٹ، اعمال کی کتاب 11 باب اور اس کی 26 ہے، دا چیپٹر 12 دا ورس 26۔ آج برکت اپنے خدا سے ایک شاگرد کے حوالے سے لیتی ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اور جب یہ منادی کرتے ہوئے، جب یہ اکٹھے ہوتے ہوئے، جب یسوع مسیح کے نام کے نعرے مارتے ہوئے یہ سبھی شاگرد جب اس کے کلام کی منادی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو خدا نے ایک خاص برکت ان شاگردوں کو دی۔ پڑھو بیٹے، سنیے بات۔ اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ آمین، ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، آگے بڑھتے رہے، وہ شاگرد بناتے رہے اور جلال کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اور جب خداوند کے حضور ان کے جلال کی، ان کی منادی کی، ان کے پاک کلام کی برکت آسمان تک پہنچی تو زمین پر اس کا رپلائی آیا، جواب آیا، اور وہ انطاکیہ کے مقام پر کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے۔ کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے۔ تم مسیحی ہو، خدا کا جلال تمہارے ساتھ کام کرتا ہے۔ جب تم اس کے شاگرد بن جاؤ گے، جب تم اپنے آپ کو خدا کی تابع کر لو گے، جب بائبل کی تابع کر لو گے، جب اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر تم ٹھہرا لو گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں، خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اس کا جلال ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے جلال کی وہ طاقت ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ جیسی طاقت خداوند مسیح کے ساتھ کام کرتی تھی، ویسی ہی طاقت ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ کن کے ساتھ کام کرتی ہے؟ کن کے ساتھ کام کرتی ہے؟ اس کے شاگردوں کے ساتھ، اس کے شاگرد ہو گے، اس کے تابع ہو جاؤ، تم مسیح کہلاؤ گے، تم عزت پاؤ گے، تم رتبے پاؤ گے، تم پہچانے جاؤ گے، تم اس کے نام
जलाल तुम्हारे साथ काम करेगा। जब तुम में से नूर से किरणें निकलेगी, जब तुम्हारे होठों से खुदा के कलाम की बातें निकलेगी, जब तुम्हारे हाथों में से बाइबलें निकलेगी, जब तुम्हारे सीनों के अंदर से पाक रूह की ताकत निकलेगी और लोगों के अंदर फैल जाएगी। मसीह कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये तालीम देना सीखिए। ये बात देना जरूरी है कि तुम खुदा के शागिर्द बनो, खुदा के पाक कलाम को सीखो, उसके पाक नाम के आगे जीतो, क्योंकि खुदा का नाम हमेशा आपकी जिंदगी के साथ काम करता है। 4 तरह की क्वालिटी एक अच्छे शागिर्द में होती है। पहली क्वालिटी, कैसे बनता है, क्या खासियत है इस शागिर्द की, कैसे वो खुदा के नजदीक आता है, एक शागिर्द की पहचान क्या है, उसका काम क्या है। The first point about a student, एक शागिर्द के मुतल्लिक़ पहली बार हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं कि एक शागिर्द को कैसा होना चाहिए। तो बाइबल में हमें ये बात सीखने को मिलती है। द बुक ऑफ मैथ्यू 28 चैप्टर 28 28 बाब 16 ऐसे, ये अनाजील की किताबों में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, और उसका 28 बाब और उसकी 16 ऐसे हम पढ़ेंगे कि शागिर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट हम आज की इस लेसन में शागिर्द की जिंदगी को ऊपर डिस्क्राइब करेंगे और खुदा से बढ़कर के तारीफ करेंगे। हालेलुया, पढ़ो बेटे। उस वक्त बरापा नाम कैदी जिसे वो चाहते थे, नहीं, उस वक्त बरापा नाम, नहीं बेटे, 28 की 16 मैथ्यू। हाँ ये ठीक है, 11 कंसीडर करो बेटे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। कितने शागिर्द गलील के उसकी पहाड़ पर गए? अब इनमें एक शॉट है। कौन शॉट है? ताज़ा और ताज़ा बिलाल कलाम को गौर से सुना, समझना और अपनी जिंदगी के ऊपर लेना हमारे लिए बाइस बरकत है। क्या शागिर्द ब्लेसिंग के लिए, कुदरत के लिए, अपने आप को मसीह के मसा में शामिल करने के लिए, अपनी जिंदगियों को खुदा के साथ गुजारने के लिए, एक मौजज़ा देखने के लिए उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब खुदा सलीब के ऊपर नहीं था। और उन 11 ने ये नीयत कर ली कि हम जिसके शागिर्द हैं, जो हमारा टीचर है, जो जलाल से पढ़ा हुआ है, जो अजीब काम करता था, जो अजीब कुदरत उसके साथ काम करती थी, मुर्दे जिंदा होते, कोड़ी पाक साफ होते और अंधे देखते और लंगड़े चलते, आओ हम उस पहाड़ की तरफ चले जहां पर खुदा हुआ करता था। शागिर्द क्या है? ईमान रखे हुए है, उसे अपने उस्ताद के ऊपर भरोसा है, उसे यकीन है। पहला पॉइंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर ईमान, तवक्कुल, भरोसा। और वो 11 ने यकमुश्त होकर एक नियत कर दी, आओ हम कहां पर चले, क्या इरादा लेकर जा रहे हैं। पढ़ो बेटे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। ठीक है। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाद में शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु मसीह को दिया गया है, और किसी मलूक के पास और किसी भी नबी के पास और किसी भी रसूल के पास ये इख्तियार नहीं जो इख्तियार में जिंदा खुदा के पास है। ये बात वो अपने शागिर्दों पर जाहिर कर, क्या डिसाइपल या स्टूडेंट या स्टूअर्ड, क्या उसके नाम के आगे झुकने वाले, सीखने वाले, उससे बरकत लेने वाले, और वो उनको बरकत देता है और कहता है जाओ सांपों और बिच्छुओं को उठाओगे और तुम्हें जरा नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। ये क्या आए, कैसा होना चाहिए शागिर्द?
खुदावंद ने अपने इख्तियार के बारे में बता रहे हैं, अपने भेद के बारे में बता रहे हैं, अपने शागिर्द को वो कुव्वत दे रहे हैं, अपने शागिर्द को वो तरीक दे रहे हैं, अपने वो शागिर्द को मानने वाले को मजबूत कर रहे हैं। और खुदावंद ने उन्हें दिखाई का पहला लफ्ज़ कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जुदा उसकी बरकत। और आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बेटे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जैसी बरकत तुम्हारे साथ काम करती है, जैसा जलाल तुमने मेरे साथ रहते हुए पाया, जैसी कुदरत तुमने मेरे साथ रहते हुए देखी, वैसी ही कुदरत तुम दूसरे लोगों में जाकर फैलाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? ये बेसिक, ये बुनियाद है हमारे अकीदे की। ये खुदावंद के नाम के साथ सीखना, शागिर्द बनना, आज से नया खुदा के नाम के साथ मुंसलिक रहना, खुदा की बरकत के साथ मुंसलिक रहना, ये पहला पॉइंट है। शागिर्द को कैसा होना चाहिए, किस तरह उसको काम करना चाहिए, किस तरह उसको बाइबल को फैलाने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए, किस तरह उसको खुदा की तालीम को आगे लाने के लिए इसके लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। इट्स ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा मसीही कहलाएगा, वो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा, वो एक अच्छा उसका मानने वाला कहलाएगा। जी बेटे आगे बढ़ो। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बात अपने जहन में नशीन कर लो, मेरे 11 मानने वालों, मेरे साथ दुख सुख में शरीक होने वालों, मेरे साथ भूख देखने वालों, मेरे साथ तंगी देखने वालों, मेरे साथ हर एक जगह पर इकट्ठे रहने वालों, इस बात को अपने दिल की तखियों के ऊपर लिख लो कि मैं अब तक तुम्हारे। जो खुदा का शागिर्द बन जाता है, जो बाइबल की ताबे हो जाता है, जो कलाम की बातों को सीखता है, बाइबल ये कहती है कि मैं अब तक तुम्हारे फंडदा खजाना जिथों जिथों बयाना है, वंडदा खजाना जिथों जिथों बयाना खुदा यीशु जिन्हों देता फिर दे के नहीं है, यीशु का फजल जलाल है उसका, अपने शागिर्दों को दे रहा, कलाम दे रहा है, ताकत दे रहा है, जलाल दे रहा है, और एक सच्चा और रास्तबाज शागिर्द वजूद में आना। पहली बात। दूसरी खासियत बड़ी इंपॉर्टेंट है शागिर्द के अंदर होनी। अगर ये खासियत उसमें नहीं होगी तो वो लोगों को नहीं जी सकेगा, वो खुदा के पंडाल में वो लोगों को शामिल नहीं कर सकेगा, वो तालीम नहीं दे सकेगा, वो बाइबल को नहीं पढ़ा सकेगा। इसके ऊपर बड़ा दारोमदार था, इस तालीम के ऊपर। सुनिए दूसरी खासियत शागिर्द के अंदर, द बुक ऑफ जॉन, अनाजील में याद रखना, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 13 बाब और उसकी 24 to 35 है, 2 आयतें आपके लिए पढ़ना जरूर है। दूसरी खासियत एक शागिर्द में क्या होनी चाहिए, पढ़ो बेटे 13, 34, 35 सुनिए बाइबल। हाँ जी। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के अंदर इस बात को लेकर आ रहे हैं, इस तालीम को लेकर आ रहे हैं, और उन्हें शरीयत या दूसरे बहुत सारे हुक्मों के साथ साथ वो एक नया हुक्म कह दे रहे हैं। क्या है ये नया हुक्म, क्या है इसकी खासियत, क्या चीज मसीह अपने शागिर्दों में पैदा करने चाहते हैं, किस बात के ऊपर वो फोकस दे रहे हैं, किस बात की वो जरूरत समझ रहे हैं कि मेरे शागिर्दों के अंदर ये बात होनी चाहिए। क्या नया हुक्म है हमारे आका दो जहान का, जिसके पास हर एक चीज का क्या है, उस आका, उस कायनात के मालिक का, जिसके वसीले से जमीन पैदा हुई, जिसको इख्तियार दिया गया, जिसके मुताबिक बाइबल कहती है कि अव्वल
आखिर हमेशा रहे। यीशु मसीह क्या कहती है, क्या दलील है? दूसरी खासियत एक डिसाइपल के अंदर क्या होनी चाहिए? पढ़ो बेटे, सुनो खुदा की मैं बात। तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ पढ़ो बेटे, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से जुड़ जाओ, एहसास करो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाओ जैसे ये मेरी ही माँ के बातों से कर रहा हूँ। शिकायत कर रहा हूँ, मेरे मानने वाले कर रहा हूँ, मेरे मुंह की बातें तुमसे निकलेगी, मुझ में से तेरा कलाम जाहिर होगा, मुझ में से तुम्हारी खासियत जाहिर होगी, मुझ में से बाइबल तुमसे निकलेगी, मुझ में से खुदा की सच्चाई के साथ काम करेगी। इफ यू एग्री, अगर तुम खुदा के साथ मुत्तफिक होकर इस बात के ऊपर ईमान रखते हो कि एक दूसरे से क्या रखो, उसी अपने शिगिर्दों के अंदर दूसरी बात कह रहे हैं, इतने मोहब्बत बात दी थी क्योंकि ग्लास में आ गया मैं वो पानी नहीं, मैं आप ही हूँ पीला पाई तेनों की कूलर नहीं दिया, वो बकरे चो दी नहीं। खुदावंद कहता है एक दूसरे से आगे, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी और उसने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना अकलौता बेटा जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है, कुदरत उसके पास है, वो मोहब्बतें बांटता, वो शिफा को बांटता, वो तंदुरुस्ती को बांटता, वो फजल को बांटता हुआ हर जगह के ऊपर फैलता हुआ खुदा का नाम आगे बढ़ता रहा। और हमने उसका ऐसा जनाब देखा जैसे बाप के मोहब्बत। दूसरी खासियत एक शिगिर्द के अंदर ये होनी चाहिए। पहली खासियत क्या थी? कैसा होना चाहिए? खुदा के कलाम को पुराने बनाना चाहिए, खुदा का नाम उसके साथ होगा, उसका फजल उसके साथ होगा। दूसरी चीज यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे शिगिर्द के अंदर ये चीज हो कि उसमें क्या हो? पढ़ो बेटे 35 का। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो उससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उससे सारी दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे यीशु मसीह के बाद जाओ, उसके ख्याले में आ जाओ, उसके कलाम में आ जाओ, उसके नाम में आ जाओ, तुम्हारी झुगलियां बढ़ जाएगी, तुम्हारा किचन बढ़ जाएगा, तुम्हें शिफा मिल जाएगी, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिंदगी तुम्हारे दर के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इससे तुम जानोगे कि तुम मेरे। दूसरी खासियत ये होनी चाहिए, मोहब्बत तुम्हें होनी चाहिए तो तुम उसके शिगिर्द कहलाओगे। जगह से खुदा अपने शिगिर्दों के साथ गुजर रहे थे, रास्ते में धूल मट्टी और बहुत सारी उनको अताश में मिला, पगडंडियां में मिली, खेत खलियान में मिले, जैसे हमारे राना टोन में है तो वो एक घर में जाकर बैठ जाती है और खुदावन क्या करते हैं? खुदावन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो पानी लेते हैं और अपने शिगिर्दों पे क्या करते हैं? मोहब्बत, एक टीचर की मोहब्बत, एक उस्ताद की मोहब्बत और उसके फजल की मोहब्बत कि वो अपने शिगिर्दों से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो ये नहीं देखता कि ये मेरे शिगिर्द है, वो पानी को लेता है और उनके पाँव धोना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक जगह के ऊपर मैं एक खादिम से एक कलाम के हवाले से बात सुन रहा था। एक बहू पैसा के पास आती है, वो पैसा कहीं बाहर से आए होते हैं और वो कहती है भाई साहब मेरे ऊपर दुआ कर दें, मैं परेशानी में। उसी वक्त खुदा का रूह खुदा के खादिम के ऊपर उतर आया और खुदा का रूह उससे कहता है कि इस बेटी को कहे कि पहले जाके अपनी सास से माजरत करे और कहे कि मैं अपने रवैये में शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ हार्ड वर्डिंग बोल दी हो, 70 अल्फाज बोल दिए हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ।
तुम भाई साहब मुसलमान है, खुदा रूह उसके साथ काम कर रहा है। हकीकत है ये बात, खुदा का जलाल अपने बंदों के साथ काम करता है। तो भाई साहब कहते हैं बड़े डरते हुए, बेटी दुआ गल करांगे कि किसी का नाराज है ना तो उन्होंने मनाना है। अगर कि मुहब्बत की कमी है ना कि तू पहले जाके वो पूरी कर ले तो कल दुआ करेंगे। बिल्कुल जानते थे। रस्ते में जाते हुए उसके ज़हन में आया कि आज तो सुबह मैंने अपनी माँ से इट्स मी माय मदर इन लॉ सच में मैंने उससे शायद कुछ ज़्यादा ऊँची बात की। वो घर जाती है और जाके अपनी मदर इन लॉ को गले लगाती है और कहती है मॉम आई एम वेरी सॉरी, अगर मैंने आपसे कोई अल्फाज बोले हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी। अगले दिन फिर दुआ होती है, सेमिनार था 2-3 दिन का, वो फिर भाई साहब के सामने आती है और भाई साहब उसके चेहरे को देखकर वो बड़ी खुश थी, उसको पास बुलाते हैं और कहते बेटी बैठ जा दुआ करें। वो कहती भाई साहब दुआ नहीं शुक्रगुजारी करें, मोहब्बत को खुदा मेरे दिल में उतार लाया है और मैंने उसकी मोहब्बत को जाना है। तब मोहब्बत हमारे दिल में आता है, जब एहसास, रिश्तों का एहसास, तो फिर हम उसके शरीर कहलाते हैं। बाइबल कहती है तुम इस वजह से मेरे शरीर कहलाओगे कि तुम में मोहब्बत होगी, तुम्हें एहसास होगा, तुम्हें रवादारी होगी, तुम्हारे अंदर से खुदा का कलाम चलेगा। तीसरा और थर्ड पॉइंट ये शहीद की जिंदगी के बारे में हम देख लेते हैं। तीसरी बरकत शहीद के साथ कैसे काम करती है। लूका की 14:25 है। 4 तरह की बरकतें एक शहीद के अंदर खुदा का कलाम उतारता है और हम उसे रिसीव करते और उसके नाम से शहीद कहलाते हैं। पढ़ो बेटे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना रखे तो वो मेरा शगीद नहीं होगा। वो मेरा शगीद तीसरी तरह की बरकत, हर एक चीज खुदा के नाम से अलग। जब खुदा का नाम आ जाता है, जब उसके फजल का नाम आ जाता है, जब उसके सबक का नाम आ जाता है, तो तुम अपनी अपनी जगह से उठकर खुदा के नाम के ऊपर इकट्ठे हो जाना। तू उसके शगीद कहना, अपनी जान को दुख देना, अपनी नींद को उसके लिए छोड़ देना, अपने आराम को उसके लिए छोड़ देना, अपने काम काज को उसके लिए छोड़ देना, अपने घर बार को उसके लिए छोड़ देना। और रूह में भरा हुआ मुकद्दस पलूस कहता है जीना मेरे लिए मसीही और मरना मेरे लिए ऐसी नफा है। तुम्हारो ये हुई जिंदगी की बरकत ले लो है। नहीं यार काम पे जाने हैं, 4 पैसे आन हैं, रौनक होई है, चांदी का घर बच्चे के पैंपर भी लै जाए और तेरे किड़े काम दे सारे हैं। अगर तू खुदा से ना जुड़ा रहेगा, अगर पाक कलाम से ना जुड़ा रहेगा, अगर तू उसके वादों से ना जुड़ा रहेगा तो तू मेरा शेर नहीं कहला सकता। इतने पादरी गीत गाते होंगे, इतने प्रस्ताव खुदा के रूह के नाल भरे होंगे ने ते वो घर टीवी लगा होगा। जब खुदा का नाम तुझे पुकारे, जब उसका पाक कलाम तुझे पुकारे, जब उसकी आवाज तुझे पुकारे तो छोड़ दे। बाइबल कहती है मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे। क्या कहते हो? तो तुसी इधर आ जाओ, यीशु मसीह नाम वाला शिकीत कहना है, उनके नाम का कहना है, एक सच्चा राष्ट्रवाद कहलाना है। क्यों फिक्र करता है तुझे जिंदगी? और खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि सारी चीजें मिलकर ऐसे 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 पल खाती हुई रास्तबाज के कदमों में आ जाती हैं जैसे वो हैं। जब आप उसके नाम के ऊपर इकट्ठे होते हैं, जब आप उसके पाक कलाम के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसका फजल आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। फिर ये ज़रूरतें, ये जिंदगी की फिक्रें कोई अहमियत नहीं रखती। आगे बढ़ो बेटो, यहाँ से छोड़ा था। जो कोई अपनी सलीब उठा
मेरे पीछे ना आए, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे अपना दुख उठाए, उसी अपनी तकलीफों को देखे, जिंदगी के साथ लड़े, खड़ा रहे और अपने अंदर इस ताकत को महसूस करता रहे कि मैं एक मसीही उसका शहीद हूँ, उसका मानने वाला हूँ, उसके पाक नाम की पैरवी करने वाला हूँ, उसके जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने वाला हूँ, और जहाँ मुझे खुदा का नाम मिलता है मैं वहां पर इकट्ठा हो जाता हूँ। हालेलुया। आगे बोलो। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हालेलुया। अपनी सलीब उठाना, अपने आप को खुदा के ताबे करना पड़ता, उसके नाम के आगे लेकर आना जरूरी है, फिर तुम सच्चे शागिर्द कहलाओगे। बाइबल ने साफ कह दिया है, जो कोई अपनी सलीब नहीं उठा सकता वो बाल अपने कामों की इदारत है, अपने ही कमाने में मसरूफ रहे, मगर जो जान खुदावत के लिए दुख देती है वो सुख पाए। आखिरी पॉइंट कुरान मुकद्दस के लिए, चौथा पॉइंट यूहन्ना की इंजील 15 अनाजील में से ही आज हम चारों अनाजील में से ही खुदा का कलाम देख रहे हैं। द बुक ऑफ जॉन 15 चैप्टर 8 वर्स 8 ऐड से चौथी वर्ग हम उस शागिर्द के अंदर देख रहे हैं। कलाम अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ो बेटे 15 की 8 आप 15 की 8 से। हाँ जी। मेरे बाप का जलाल उसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा आपने पिछले सदे फल के मुताबिक बाइबल को सुना। फल लाना आपके लिए बड़ा नेकी, परहेजगारी, रूहे जीतने का फल, पकीज़गी का फल, रास्तबाजी का फल और खुदा के साथ साथ चलने का फल। खुदा के मुतल्लिक़ पूरी हमने इस चीज को देखा कि फल लाना कितना जरूरी। अगर तुम फल नहीं लाओगे तो तुम कांटे और आग में। ये 15 के चैप्टर में यही लिखा हो, अंगूर का हकीकी दरख्त, ये वही चैप्टर है इसमें यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त। तो फल लाना शागिर्द के लिए चौथी जिम्मेदारी, नहायत जरूरी बात, फल लाना शागिर्द के लिए। फल, बरकत, पकीज़गी, रास्तबाजी, खुदा के कामों को जानना, शागिर्द बनने के लिए तुम्हें खुदा के साथ चलने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर फल लाना जरूर। पढ़ो। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जब ही तुम मेरे, ये बात बहुत अच्छी है। आज हो देर रात आगे बाइबल आजो उनकी सोने दिया सरदरा नहीं होती, आजो उनके दूध की शहद का नैना दे बेचे, आजो उनके जिंदगी के चश्मे दे बेचे, जो चश्मा शरोब से बहता और जिंदगी को बढ़कर देता हो। जिसका जलाल उससे बहता, बरकत उससे बहती। तुम मेरे शागिर्द ठहराओगे, फल तुम्हें लगेगा, बरकत तुम्हें लगेगी, जिंदगी तुम्हारे साथ काम करेगी, बरकत रूह के फल तुम्हारे साथ काम करेंगे और दुनिया जानेगी कि तुम मेरे ताकिया तुम काम के ऊपर कहलाए गए। मसीही तेरे लिए क्या जरूरी है, मसीही ग्रामी में पैदा होना तेरे लिए क्या जरूरी है। तू नाम का मसीही तो नहीं रहती, तू जलाल के लिए तो अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ा, तू रास्तबाजी के लबाजे को तो नहीं छोड़ा, तू उस लबाज से पीछे तो नहीं हट रहा जो खुदा का कलाम कहता है। तुम फल लाओ तभी तुम मेरे शागिर्द हो। इतने फल ले आता खुदा के नाम में तो मोहब्बत को छोड़ दे, इनकिसारी को छोड़ दे, फल लाने की बात को छोड़ दे, बाइबल को सुनना, खुदा के नाम के आगे झुके रहना जरूरी। आगे बढ़ो। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी,
वैसे ही मैंने तुमसे रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में जरूरी है हमें खुदा की शरीयत पर मेरे लिए उसकी मोहब्बत में जरूरी है हमें उसकी तालीम लेने के लिए, जरूरी है हमें अच्छे डिसाइपल बनना, जरूरी है हमें शागिर्द को अपनी जिंदगी को ऊपर लेना, क्योंकि हमने उसका चुनाव अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किया, उसके पाक कलाम की कुव्वत को अपनी जिंदगी को महसूस किया है। आओ हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमारे लिए ऐसी मोहब्बत दी कि अपनी जान दे दी ताकि हम निजात पाएं और उसकी कसरत की जिंदगी के अंदर उसकी शागिर्दों की मान जिंदगी गुजारने में दाखिल हो गए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।